आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका दोस्त विपिन यादव, स्वागत है आज की नई क्लास में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फाउंडेशन ऑफ ग्रामर। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ इट. I have already uploaded the first part, the foundation of grammar. In this video we are going to learn the predicate, subject and predicate. दोस्तों, subject and predicate is the base of the grammar and you must know it. So that's why I'm trying to teach about it, trying to give the information, all information about the subject and predicate. And I assure you that after watching this video you are going to learn each and everything about the subject and predicate. This is my promise to you. You have to just stick to the video and you have to watch till the end, and then you are going to have all the information about it. So let's get started without wasting more time. If you like the video after watching it, then you have to hit the like button, and if you are new to the channel, you have to subscribe to the channel. Okay students, so now we are going to start. What is the subject? From the very basic, what is the subject? Very simple definition that I am going to tell you. What is the subject? In Hindi, if I say what is the subject, karta. As its name suggests, करता मतलब काम करता होगा, कुछ ना कुछ करता होगा. सिंपल बात है, ये सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज द वर्ड दैट इज द डूअर ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस का डूअर है, जो सेंटेंस में जो काम को कर रहा है. एनी वर्क दैट इज बीइंग डन, कुछ भी काम किया जा रहा है, कौन कर रहा है? जो कर रहा है वही सब्जेक्ट है. सो सब्जेक्ट इज द डूअर. लेकिन इतना ही नहीं है. दिस इज नॉट ओनली अबाउट इट. सब्जेक्ट हैज समथिंग एल्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ सेंटेंस दैट इन द सेंटेंस इफ देयर इज नो एक्शन, देन हाउ कैन यू से? डू यू थिंक इन दिस सेंटेंस देयर इज नो सब्जेक्ट? इफ फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सेंटेंस इन विच, let me give the example of the first one, then I will tell you this later on. Okay, for example, this is sentence, I am teaching English. In this sentence, what is the action being done? Teaching. काम क्या हो रहा है? Teaching. And who is doing it? So this person is the subject. I is the subject of this sentence. For example, यहाँ लिखा होता Ram is teaching English, तो Ram would be subject. So this is the doer. This is the doer of this sentence. That's why you can say I is the subject. Here I work as an engineer. यहाँ काम क्या हो रहा है? Work. कौन कर रहा है? I, subject. In this sentence you can say jump. Who is jumping? Boy. Who jumps into the river? कौन नदी में कूद जाता है, कूदता है? Boy. तो ये काम कर रहा है boy. Sang, किसने अच्छा गाना गाया? गर्ल हो गया सब्जेक्ट. स्मार्ट गर्ल पूरा बोल सकते हैं. बताऊंगा इसके अंदर भी कोई डिफरेंस है, लेकिन इसके अंदर काम कौन कर रहा है? ये. कौन जंगल गया? राम एंड सीता, सब्जेक्ट. सो फर्स्ट पार्ट इज दैट द डूअर. इन द सेंटेंस, इफ यू फाइंड आउट द डूअर ऑफ द मेन वर्ब, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव द सब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस. सेंटेंस, any word that does or perform an action is called subject. But this is not the proper complete definition of the subject, because in this sentence, look at this sentence, I am a teacher, I am an engineer. In these two sentences, now tell me what action is being performed. You can say, sir, there is no action is being performed in these 10 sentences. In these sentences, there is no action being performed. So, do you think in these sentences there is no subject? No. In these two sentences, we also have a subject. I, subject. Even though it is not performing any action, even then it is a subject. So that's why subject has another definition. First, it performs an action. Second, who is being talked about in the sentence, जिसके बारे में कुछ बात करी जा रही है. And
which is the word about it all the information is given in the sentence. जिसके बारे में बात करी जा रही है या तो जिसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, we can say that is also subject. For example, यहाँ पे ये टीचर कौन है? ये टीचर है. कौन है टीचर? ये बात किसके लिए कही गई है? आई के लिए. इंजीनियर कौन है? आई है. सो आई इज द सब्जेक्ट. In this sentence, doer in this sentence is being talked about. This information is for this one. This is called subject. So ध्यान रखना, सिंपल से याद रखना कि जिसके बारे में बात करी जा रही हो, जिसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन गिवन हो, और या फिर सेंटेंस में जो कुछ एक्शन को परफॉर्म कर रहा हो, उसे हम बोलेंगे सब्जेक्ट. गॉट इट? एंड नाउ लेट्स कम टू द प्रेडिकेट. प्रेडिकेट भाई को भी निपटा लेते हैं. सो व्हाट इज द प्रेडिकेट? व्हाट सब्जेक्ट डज. सब्जेक्ट जो भी कुछ करता है उसे क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट बोलेंगे. जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या कर रहा है? टीचिंग कर रहा है. क्या टीचिंग? इंग्लिश टीचिंग करने का काम कर रहा है. दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट. In the first sentence, in the very first sentence, we are seeing that subject I is teaching. तो सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट ये टीचिंग, सब कुछ मिला के इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट सब मिला के क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट बोलेंगे. मतलब सब्जेक्ट के अलावा जो बच जाता है ना, वो सारा सारा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है. If you leave the subject, all the rest information is for the predicate. सब्जेक्ट आप फाइंड आउट कर लो, बाकी जो बच जाए उसको अंडरलाइन कर दो. दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. सिंपल सी बात. लेकिन मैंने बता दिया सब्जेक्ट क्या? सब्जेक्ट जो भी कुछ करता है वो क्या? प्रेडिकेट का पार्ट होता है. यहाँ तो सब्जेक्ट कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी, लेकिन इन दो सेंटेंस में सब्जेक्ट अब भी कुछ नहीं कर रहा है, तो क्या सेंटेंस में प्रेडिकेट नहीं है? इवन इन दिस टू सेंटेंसेस वी हैव प्रेडिकेट. व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट द सब्जेक्ट. यहाँ लिखा था हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात करी जा रही है, और व्हाट इज सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो सारा सारा प्रेडिकेट है. तो सेम है ना, हु इज बीइंग, व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी, क्या? व्हाट इज बीइंग, जो कुछ भी कहा जा रहा है, व्हाट एवर इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, जो भी कहा जा रहा है वो सारा सारा क्या है? प्रेडिकेट. जैसे कि आई एम अ टीचर, ये सब्जेक्ट के बारे में कहा गया है. कौन है टीचर? है तो सब्जेक्ट ही. इंजीनियर कौन है? सब्जेक्ट ही. यही तो आई है. इसका मतलब ये भी क्या? प्रेडिकेट है, और ये भी क्या है? प्रेडिकेट. गॉट इट? तो सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट क्या है? जो काम को करता है, जिसके बारे में बात करी जा रही है, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट. और जो सब्जेक्ट जो कुछ भी करता है वो प्रेडिकेट का पार्ट है, और जिस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है वो प्रेडिकेट का पार्ट है. आई होप यू हैव गॉट इट. अब इन सब में तुम देख सकते हो, सब में सब्जेक्ट क्या है? ये सब्जेक्ट है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन है. ये सब्जेक्ट है, ये इंफॉर्मेशन है. यहाँ तक सब्जेक्ट है, ये इंफॉर्मेशन है. प्रेडिकेट है मतलब. और ये सब्जेक्ट है दोनों, ये प्रेडिकेट है. यहाँ पे शी सब्जेक्ट है और बाकी प्रेडिकेट है. अब बात ये है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के टाइप भी होते हैं. देखो इन्हीं सेंटेंस में मैं टाइप भी निकाल दूंगा, क्योंकि देखो आप देख रहे हो यहाँ पे एक वर्ड का सब्जेक्ट है, यहाँ पे एक वर्ड का, यहाँ पे 2 वर्ड्स का सब्जेक्ट है, यहाँ 3 वर्ड्स का सब्जेक्ट है, यहाँ पे एंड लगा के सब्जेक्ट है, यहाँ पे 2 वर्ब आ गई है. देखो तो क्या कुछ तो मामला होगा ना. 2 मिनट रुक जाओ, इन सबको भी उड़ा के रख देंगे हम. देखो सिंपल से यार, देखो डेफिनेशन एक बार देख लो, फिर मेरे को समझा देता हूँ. सिंपल प्रेडिकेट, सॉरी सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट भाई एक ही वर्ड हो जो, ठीक है ना. हाँ ऐसे मान लो एक वर्ड हो जो मेन वर्ड हो. सिंपल प्रेडिक्ट सब्जेक्ट मतलब है जो एक वर्ड है, एक वर्ड का सब्जेक्ट है, या तो उस सेंटेंस का उसे क्या बोलेंगे? सिंपल सब्जेक्ट बोलेंगे. ऐसे आई 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 आई, यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, ये 3 वर्ड्स है, यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं. तो ये समझे, एक वर्ड को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे एक वर्ड को? एक वर्ड को बोलेंगे सिंपल सब्जेक्ट. एक होता है कंप्लीट सब्जेक्ट. कंप्लीट सब्जेक्ट का मतलब है अगर एक वर्ड से ज्यादा हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे कंप्लीट सब्जेक्ट. जैसे यहाँ देखो द बॉय, इसे कंप्लीट सब्जेक्ट बोलेंगे. अब मेरी बात ध्यान सुन लो. इस कंप्लीट वर्ड में
ये 2 वर्ड्स का सब्जेक्ट है, लेकिन है तो मेन सब्जेक्ट बॉय है ना। ये तो हमने इसका तो कोई काम नहीं है, इसको तो बस मॉडिफाई करने का काम आ रहा है। मतलब यहाँ पे जब करने का मतलब बॉय ही कर रहा है ना, तो ये मेन वर्ड है, ये मेन वर्ड है। इसको आप सिंपल सब्जेक्ट बोल सकते हैं अकेले में। इस मेन वर्ड को आप बोल सकते हैं सिंपल सब्जेक्ट, पूरा बोलोगे कंप्लीट सब्जेक्ट, ठीक है ना। क्योंकि देखो एक वर्ड है, मेन वर्ड है, यहाँ पे एक वर्ड है, यही मेन वर्ड है। यहाँ 2 वर्ड है लेकिन ये मेन है, तो यही है सिंपल, और पूरा क्या है, कंप्लीट है। यहाँ देखो द आई स्मार्ट गर्ल, गाना किसने गाया है, गाना लड़की ने गाया है, यही है सिंपल सब्जेक्ट। क्योंकि साथ में लिखा है तो आप सिंपल नहीं बोलेंगे, आप पूरे क्या बोलेंगे, कंप्लीट सब्जेक्ट। 1 2 3 वर्ड्स का कंप्लीट सब्जेक्ट है, लेकिन अपने आप में ये मेन है, ये मेन वर्ड है ना, जिसको आप बोल सकते हैं सिंपल सब्जेक्ट। कोई अगर पूछ ले कि कंप्लीट सब्जेक्ट से सिंपल सब्जेक्ट निकालो, तो आप क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे। सो कंप्लीट सब्जेक्ट का मतलब होता है मोर देन 1 वर्ड, जब सब्जेक्ट का काम करे। भाई देखो लड़की ने गाना अच्छा गाया, कौन सी लड़की ने, एक स्मार्ट लड़की ने गाना गाया, तो ये जो स्मार्ट वर्ड है आया तो लड़की के लिए है, तो ये भी सब्जेक्ट का ही पार्ट है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम कंप्लीट सब्जेक्ट। ये अपने आप में क्या एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, जो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है। अब एक होता है कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट सिंपल सा है। कंपाउंड का मतलब होता है कि जब उसके अंदर एक से ज्यादा वर्ड तो होंगे, जब एक से ज्यादा सब्जेक्ट आ जाए, एक से ज्यादा डूअर आ जाए। देखो इसमें 2 वर्ड्स हैं, इसमें 3 वर्ड्स हैं, लेकिन डूअर तो एक ही है ना, यहाँ पे गर्ल है, यहाँ पे बॉय है। लेकिन यहाँ देखो इस तीसरे वाले में, जंगल गए हैं राम और सीता, सब्जेक्ट ये है राम एंड सीता, 3 वर्ड का सब्जेक्ट है, राम एंड सीता 3 वर्ड हैं। कंप्लीट नहीं बोलेंगे, कंप्लीट क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या ना, ये 2 अलग अलग वर्ड, दोनों ही डूअर है, ये भी डूअर है, ये भी डूअर है, जंगल जाने वाला ये भी है और ये भी है। इसे क्या बोलेंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट। बोलो क्या बोलेंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट। अब मेरे को बताओ, जैसे मैं कहता हूं गीता एंड सीता, गीता एंड रीता, गीता एंड बबीता, कुछ भी लिख लो आप, गीता एंड बबीता प्लेड क्रिकेट, तो यहां पे गीता एंड बबीता कौन से किसके अंदर आएगा, आप लोग बताना। ओके, ये आपके लिए होमवर्क है। तो ये मैंने बता दिया क्या सब्जेक्ट बारे में, सिंपल 1 वर्ड वाला, कंप्लीट 1 से ज्यादा वर्ड हो, लेकिन 1 से ज्यादा वर्ड होंगे, लेकिन उसके अंदर मेन जो डूअर एक ही होगा, मतलब मेन एक ही वर्ड का मतलब उसके अंदर एक ही मतलब सब्जेक्ट होगा, डूअर होगा, एक ही वर्ड। और एक कंपाउंड का मतलब क्या है, 1 से ज्यादा वर्ड होंगे, लेकिन उसके अंदर 1 से ज्यादा डूअर होंगे। अब प्रेडिकेट देख लो, प्रेडिकेट सिंपल प्रेडिकेट होता है, ये सेम सिंपल प्रेडिकेट, कंप्लीट प्रेडिकेट, कंपाउंड प्रेडिकेट, जैसा मतलब इनके सब्जेक्ट है ना, वैसे ही है, बहुत सिंपल सी बात है। आप देख लो, सिंपल प्रेडिकेट का मतलब जानते हो क्या है, प्रेडिकेट के अंदर देखो, प्रेडिकेट क्या है, सब्जेक्ट छोड़ के सारा क्या है, वी आर लिविंग द सब्जेक्ट एंड एवरीथिंग इज क्या है, एवरीथिंग इज प्रेडिकेट। सो जो भी सारा एम से लेके इंग्लिश तक प्रेडिकेट है। इसके अंदर जो मेन वर्ब है ना, जो मेन वर्ब है, जो मेन वर्ब है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम सिंपल प्रेडिकेट। जैसे यहाँ टीचिंग मेन वर्ब है, ये है सिंपल प्रेडिकेट। यहाँ पे तो ये वर्ब क्या है, प्रेडिकेट, सिंपल प्रेडिकेट। यहाँ जंप है, यहाँ पे सेंग है, यहाँ वेंट है। और कंप्लीट क्या बोलेंगे, सारा क्या बोलेंगे, कंप्लीट बोलेंगे। सारा प्रेडिकेट क्या बोलेंगे, कंप्लीट प्रेडिकेट बोलेंगे। आसान है ना। कंपाउंड क्या होगा, जब प्रेडिकेट के अंदर 1 से 2 एक्शन ज्यादा हो जाए। देखो सुनो ध्यान से, सब कंपाउंड प्रेडिकेट जब बोल रहे हैं, जब हमने देखा 1 से ज्यादा 2 लोग हैं, 1 से ज्यादा लोग हैं जो एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब डूअर 1 से ज्यादा है, सब्जेक्ट 1 से ज्यादा है। और लेकिन कंपाउंड प्रेडिकेट का मतलब, कंपाउंड प्रेडिकेट क्या होगा, जब उस डूअर ने 1 से ज्यादा काम किया हो। जैसे यहां देखो, ये एक सिंपल सब्जेक्ट है, सिंपल सब्जेक्ट एक ही वर्ड है, सिंपल सब्जेक्ट है, एक ही वर्ड है, लेकिन इसने काम क्या किया, एक तो इसने खाना को खाया, दूसरा इसने प्लेट को धोया। अब धोना और खाना 2 एक्शन हुए हैं, 2 मेन वर्ब है। मतलब जब प्रेडिकेट के अंदर 1 से ज्यादा मेन वर्ब आ जाएं, when you are having more than 1 main verb in the predicate section, but all the verbs main verbs are being performed by the single one, तो क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कंप्लीट कंपाउंड प्रेडिकेट।
तो यहां से लेके यहां तक पूरा सेक्शन बोलेंगे कंपाउंड प्रेडिकेट, क्योंकि यहां पे एक्शन दो हो रहे हैं लेकिन परफॉर्म करने वाला एक ही है। ठीक है ना। तो जब ध्यान रखना सब्जेक्ट एक से ज्यादा काम कर दे तो अगर दो मेन वर्ब आ जाए तो उसको बोलेंगे कंपाउंड प्रेडिकेट, दो आ जाए तीन आ जाए जितने भी आ जाए। तो मेरे ख्याल से ये था आज का लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। लेकिन आप मेरे को बताना अगर तुमने पूरा वीडियो देख लिया है। गीता एंड बबीता प्लेड क्रिकेट, इसमें गीता एंड बबीता कौन सा सब्जेक्ट है, सिंपल, कंप्लीट या कंपाउंड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद दोस्तों।